students, welcome back to the channel Zach Economics. In the last video, I have discussed about two more important sectors stagnation. One is stagnation of foreign trade sector and the other is stagnation of demographic condition of Indian economy at the time of independence. Now today we are going to discuss about the next stagnation, that is stagnation of occupational structure. नाउ ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए. ऑक्यूपेशन का मतलब डिस्पर्सल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, पॉपुलेशन ऑफ वर्कफोर्स, ओके, अमंग वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. एंड सेक्टर्स एज यू नो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. तो कौन कौन सी कितने कितने परसेंट लोग वर्कफोर्स के किस किस सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं, सिंपल. तो इफ आई टॉक अबाउट द थ्री मेजर थिंग्स, द फर्स्ट इज एग्रीकल्चर. सी, it was considered a principal source of occupation at the time of independence. Reason being, because the people are not skilled, they are not educated, they want to get dependent on agriculture only. So around 75% of the country's population is dependent on agriculture. And one more reason, that major population resides in rural area. Urban area we don't have population, and that's why other sectors are lagging behind. And it is also accounted that rest 25% after the 75% is being involved in service and manufacturing sector. Now second, there was insignificant, this industry acts as a insignificant source of occupation. It is also providing occupation but only around 9%, which is a very less thing. But if you talk about the various developed countries at that time, in USA at the time of India is getting independent, 32% population was involved in industrial sector, 42% in England, 39% in Japan. So India was way more backward in that sense in terms of industrial structure. Okay. Now next is regional varieties or variations are also there. Now what is this regional variation? देखिए state wise भी difference होता है. If you study two states, यूपी एक अलग स्टेट है, दिल्ली एक अलग स्टेट है, बट देर इज अ रीजनल डिफरेंसेस. ठीक है, जो चीज़ें आपको दिल्ली में अवेलेबल हैं दैट आर नॉट मोर अवेलेबल इन यूपी. सो उस टाइम पे भी जब इंडिपेंडेंस हुआ तो ये रीजनल वेरिएशंस थे. कुछ स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का बूम आया हुआ था. ठीक, वो स्टेट्स कौन से थे? जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल. ये सारे स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पे इंडस्ट्रियल जो है इंडस्ट्री बेस्ड एरिया था. लोग एग्रीकल्चर पॉपुलेशन से शिफ्ट होकर अपने ऑक्यूपेशन को इंडस्ट्रियल पे ला रहे थे. ठीक, दे आर बिकमिंग मोर स्किल्ड, दे आर बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड इन टर्म्स ऑफ अर्निंग देयर लाइवलीहुड. वहीं पे अगर उस टाइम पे मैं बात करूं उड़ीसा, राजस्थान या पंजाब की, सो दे आर स्टिल द एग्रीकल्चर सेक्टर ओनली. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैग्नेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेक्टर, occupational structure at the time of independence. Okay, so next we are going to talk about stagnation of infrastructure sector. See, infrastructure is simply the medium of transfer. Now this medium of transfer depends on four major ways. First is roads, second is railways, third is air and water transport, and fourth is communication. See, at the time of Britishers, this state of infrastructure was very damaged. Proper roads were not there, the railway lines were also limited, and air and water transport was also up to a certain limit, and communication. And why the communication is taken into consideration? Because it acts as an infrastructure for providing or transferring information, simple. So this all roads, railways, air and water transportation and communication we have inherited from Britishers only, but it was up to a limit. The roads, talking about the roads, they were built, but it was not as such कि हर एक गांव तक की रोड आपको मिल जाएगी. जैसे आज के टाइम में आप किसी गांव में भी जाना चाहेंगे तो यू विल गेट अ गुड रोड. ठीक, एक प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, रोड पे पानी नहीं भरता है. ठीक, बहुत सारी जगह ऐसे ही, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, बट इतनी नहीं है जितनी उस टाइम पे थी. उस टाइम पे तो आपको गांव तक सामान पहुंचाने के लिए, मान ली किसी गांव में बीमारी फैल गई या कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसी रोड्स ही नहीं अवेलेबल हैं कि यू कैन रीच टू दैट प्लेस. बाढ़ आ जाती थी पूरी. ठीक है, ऐसे प्रॉपर सिस्टम, ड्रेनेज का सिस्टम नहीं था, तो ये सारी प्रॉब्लम. इसी तरीके से अगर मैं रेलवेज़ की बात करूँ तो रेलवेज़ भी एक प्रॉपर लिमिट तक ही था. अगर मैं फर्स्ट जो रेलवे लाइन कंडक्ट की गई थी बिटवीन थाने एंड दैट पुणे एंड ऑल, तो वो जो 1850 में जो है इंट्रोड्यूस किया था, तो ब्रिटिशर्स हैज़ गिवन अ गुड थिंग देयर, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर टॉपिक, दैट इज पॉजिटिव इफेक्ट्स दैट ब्रिटिशर्स हैज़ गिवन अस और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स लेड बाय ब्रिटिशर्स टू अस. ये हम लोग बात करेंगे, लेकिन मेनली रेलवे ने जो है इंडिया की इकोनॉमी को जो है बहुत ही जो स्ट्रक्चर था उसको अफेक्ट किया. ठीक, दो इंपॉर्टेंट वेज हैं उसमें.
फर्स्ट चीज़ ये थी कि उसने जितने भी जोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स थे उनको और जितने भी नेशनल इंटीग्रेशन के मैटर्स थे उनको ब्रोक कर दिया, ठीक। जैसे कि रेलवे जो है जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है उनको आप इजीली कवर कर सकते हो। जिस प्लेसेस में इंडिया अपना सामान इंडिया के अंदर भी पहुंचाना चाहता है, यू कैन इजीली रीच टू दैट प्लेसेस बिकॉज रेलवे लाइंस गो अप देयर। तो ये सारी बेनिफिट्स जो हैं, ये सारी चीज़ें जो इंडिया को रेलवे दिया ब्रिटिशर्स ने, इट एक्ट्स एज अ गुड थिंग। बट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एट दैट टाइम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इट वॉज नॉट टोटली रिक्वायर्ड दैट मच विच इज़ नाउ, ओके। तो आज के टाइम में जितना है उतना उस टाइम पे नहीं था, ठीक है। वो ब्रिटिशर्स उतनी ही डेवलपमेंट करते थे जितना उनको बेनिफिट करे, ना कि कंट्री को बेनिफिट करे। ये बाद में जो डेवलपमेंट हुआ दैट हैज़ हेल्प द कंट्री, बट एट दैट टाइम दे ओनली डेवलप दोज थिंग्स विच हेल्प देम, ओके, द ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट इज एयर वाटर ट्रांसपोर्ट। सी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जो है कुछ ऐसे मेजर्स लिए गए थे जिससे प्रॉपर एयर वाटर ट्रांसपोर्ट हो सके, ठीक। तो उन्होंने एक वाटरवे क्रिएट किया था, जो मैंने स्विस कैनाल आपको बताया, ये एक वाटरवे क्रिएट किया था जिससे इंडिया से अलग अलग कंट्रीज़ जो है कनेक्ट हो सकें, ठीक। और भी बहुत सारी चीज़ें, बट इतना प्रॉपर सिस्टम नहीं था जितना आज के टाइम में आप देखते हैं, ठीक। कि आपको जो है कहीं भी जाना है थ्रू एयर, ठीक, या फिर वाटर, इजली द waterways are available, airways are available, you can easily go, you have various airlines. At that time this was not the case. Next, when we talk about communication, communication was limited to post and telegram. उस टाइम टेलीग्राम का वो था, सिस्टम था, पोस्ट का सिस्टम था। वी डोंट हैव सच सर्विस लाइक वी हैव टुडे। सिर्फ पोस्टल सर्विस पे ही पूरा डिपार्टमेंट डिपेंड था, ठीक। पोस्टल सर्विस के ही बेसिस पे कम्युनिकेशन होता था, ओके। So this is all about the thing. So I would like to, okay, so these are the four major ways that there was stagnation in roads, railways, air and water transport and communication, which leads to improper movement of goods, and it is being developed only to such extent which can be benefited by British government and not by the Indians after the Britishers leave also. So after the independence, in that year span of time from 1947 till now, we are till 2020, there is whole lot difference in terms of infrastructure. Now India is more capable. We are having roads up to various lengths. We are having railway lines spread all over India. We have good air and water transport and a good communication process. Now we are totally electronic based systems. We have email and various other systems through which we can easily communicate, okay. So this is whole of the stagnation of infrastructural sector. Now the last topic of this chapter I'm going to discuss, that is about what are the positive impacts or positive contributions which are being laid by British rules in India. Okay, so we'll discuss that. Next topic is about whether any positive impact was laid by British rule in India. So there are 5 different points in which I am going to tell you that how Britishers has given something positive to us. Now, with the due span of time, we are capitalizing that opportunities which are being given by Britishers, and now we are developed and become so much self-sufficient in them. तो सबसे पहली चीज़ आपके पास जो आती है वो आती है कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सी, देयर वाज commercialization process which has been introduced by Britishers have make Indian to understand that whatsoever the excess produce is there, they can easily sell it into the market, start a commercial process over there and can earn surplus, ठीक है। तो जितना भी एक्स्ट्रा जनरेशन ऑफ क्रॉप्स होता था वो फार्मर्स ने ग्रेजुअली स्टार्ट किया सेल आउट करना मार्केट्स में, और जिससे जो आउटलुक था फार्मर्स का वो चेंज होना शुरू हो गया। आज आप गांव में जाते हैं तो यू कैन फाइंड कार्स ऑल्सो, दे हैव कार्स ऑल्सो, दे हैव गुड हाउसेज ऑल्सो, पक्का हाउसेज ऑल्सो, दे हैव इंटरनेट कनेक्शंस ऑल्सो, दे हैव डिश टीवी ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल किसकी वजह से हुई? बिकॉज देर इज़ अ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर विच इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स ओनली, ओके। सो दिस वॉज द फर्स्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट। सी, with the starting of new transportation system, Britishers has gifted us railways, okay, and they have also developed the system of connectivity of a network of roads. Now this has created various new employment opportunities also. See, in that sector, railway, as you can see, it is the biggest employer at this point of time in India. Railway is considered as the biggest employer.
उसने बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रखा है। तो ये रेलवे किसकी देन है? ये रेलवे जो है ये ब्रिटिशर्स की तो देन है, सिंपल। और इसी की वजह से जितनी भी हमारी इकोनॉमिक या सोशल ग्रोथ हुई है उसके लिए अलग अलग जो है हमें सिस्टम या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती रही हैं। और ये जो गिफ्ट था रेलवे का या रोड्स का या ये नेटवर्क जो था, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था ब्रिटिशर्स के थ्रू, ठीक है। और बेटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी आज अवेलेबल है हमारे पास, ठीक। नेक्स्ट, अब जिन जिन एरिया में फेमाइन हो जाता था, फेमाइंस मतलब जहाँ जहाँ पे भुखमरी हो जाती थी, लोगों तक खाना नहीं पहुँच पाता था, ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बाय द ब्रिटिशर्स इन टर्म्स ऑफ रेलवे रोड नेटवर्क, ईजिली जो है वो फूड उन तक पहुंच सकता है। और इतने भी फेमाइन अफेक्टेड एरिया हैं जहाँ जहाँ खाने की कमी है उन सब तक खाना पहुंचाया जा सकता है, जिससे लोग बीमारी से नहीं मरेंगे, उनको प्रॉपर हाइजीन मिलेगी, ठीक, और प्रॉपर हैबिटेट मिलेगा जिससे वो डेवलप कर सकेंगे, ठीक है। और वो जो है भुखमरी की हालत में जो है वो मरेंगे नहीं, वहाँ पे ड्रॉट नहीं आएगा, ठीक है ना, सूखा नहीं पड़ सकता वहाँ पे। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास ऐसे सिस्टम है, ऐसा ट्रांसपोर्ट हो गया है जिससे हम ईजिली फूड सप्लाईज या फूड ग्रेन को प्रोवाइड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं सिंपली, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट positive impact led by Britishers over India, that they help us to control famines. Next, Britishers has make India or given India a monetary system of exchange. इससे पहले क्या होता था, इंडिया में एक जो बार्टर सिस्टम का वो था, लेकिन जो ट्रांजिशन आया कि फ्रॉम बार्टर सिस्टम वी हैव जस्ट कन्वर्टेड टू अ प्रॉपर मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी थी इसमें एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बन गया, और जिसने अलग अलग तरीके के प्रोडक्शन को, लार्ज स्केल प्रोडक्शन को प्रमोट किया, स्पेशलाइजेशंस को प्रमोट किया, ठीक। तो ये जो मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था, डैट इज़ ऑल्सो हेल्प अस टू develop the economy, Indian economy, because now the goods are not exchanged for goods, but goods are exchanged for a single unit currency, that is money, ठीक। तो इसने भी बहुत हेल्प की हमारी, and this was also a positive impact by British. Now last thing what you have given, they have led us to know कि how to manage and what is this administration thing, ठीक। जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी ब्रिटिशर्स का ही दिया हुआ है। जो आप देखते हैं ना कि ये क्लर्क पोस्ट पे है, ये आईएएस ग्रेड पे है, ये पॉलिटिशियन है, ये सारी की सारी चीज़ें जो सिस्टम है हम लोगों ने ब्रिटिशर्स से ही कॉपी किया, ठीक है। क्योंकि उन्होंने हम पर रूल किया था और वो रूल का जो इफेक्ट था वो आज तक है। हम लोग उन्हीं की तरीके से जो है सिस्टम्स को मैनेज करते हैं, ठीक है। अगर आप ब्रिटेन में भी जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप सिमिलर पाएंगे इंडिया की तरह। रीज़न बीइंग we are being governed by them, we are being ruled by them, we were the slaves of them, so we have followed their system of administration, and they have the best system of administration in whole world, ठीक। they administer the thing in such a manner in order they can achieve the goal and hit the target, okay। तो इस सिस्टम से उन्होंने, और इसी की वजह से जो इंडिया की पॉलिटिक्स है पूरी, आप देखते हैं ये पॉलिटिक्स का भी पूरा सिस्टम जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट का सिस्टम है, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारा का सारा सिस्टम जो है ये कॉपी आउट किया गया है किसके थ्रू? जो ब्रिटिशर्स थे उनके थ्रू। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इवन द कॉन्स्टिट्यूशंस, मेजर थिंग्स आर बीइंग कॉपीड फ्रॉम देम। तो दीज आर ऑल द 5 positive impacts. There are many, you cannot bring all together here, but 5 are the main that we have to study, and this has made India, this has given India a proper system through which India is now developing more and more things, okay। So these were the positive impacts of British rule. First is commercialization of agriculture, then new opportunities of employment and better transportation system. Third is control of famines. Fourth is monetary system of exchange, and fifth is efficient system of administration. So thank you class, this is the chapter over. This is chapter 1 of the Indian economic development. Now it's complete. Prepare it well, and any problem comment it down or ask me on the WhatsApp group. Share the channel, like the video, press the bell icon for further updates. Thank you class.